So we are here because there's an orientation class. This is an orientation class. This is an orientation class wherein we are going to talk about what exactly are the requirements for the OPSC and what exactly is the difference in terms of your preparation with regards to OPSC versus UPSC. So presumably for those people who do not have any fair idea about what exactly lies between the differences and the similarities between the two exams, so we are here to conduct an orientation class so that you have a clarity in terms of how your approach should be with regards to two different exams. Okay, so one must be very clear in the head what they are approaching, and typically once they have a clarity what they're approaching, their approach should be with regards to that particular subject only. There are many people who make mistakes as to how they undermine the state service examinations, and they do not do the enough efforts that is meant to be done with regards to the state services. State services is a completely different ball game. You need to have completely different approach with regards to UPSC. So what usually happens is that for the first few years of the preparation, so to say 2 years, maybe 3 years, people do not tend to write the state service exams. There's an air about them that they're only meant to be an IAS officer. So that is a wrong perception. Many of us are suffering from the same sort of syndrome. So we need to get out of that state of mind first. Okay? Any state exam for that matter, and OPSC in very specifically requires a detailed study about the state related examinations, state related geography, state related history, and all of that requires at least 3 months. At least 3 to 4 months. Okay? Be it any state service examination, be it OPSC, be it UPPCS, be it BPSC, be it JPSC, be it CGPSC, all state services have a certain portion which very specifically deals with that state specific questions, and they are in large numbers, and they are the deciding factors कि भाई कैसे आपका एग्जाम निकलेगा. बहुत लोग क्या करते हैं कि they just prepare for UPSC and they go and write the exam of OPSC. It is not going to work that way. It has never worked. It will never work. चाहे आप UPPCS में जा रहे हो तो आपको अलग तरीके से कुछ किताबें पढ़नी पड़ती हैं, घटना चक्र पढ़ना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो यूपी से रिलेटेड स्पेसिफिक होती है. ठीक उसी तरीके से विद रिगार्ड्स टू उड़ीसा ऑल्सो. उड़ीसा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट. अगर हम लोग उसको देखें कमर्शियली, अगर हम लोग देखें मिनरल वाइज, लोकेशन वाइज, कोस्टल स्टेट, इट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन, वेरी डिफरेंट डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ इट्स ओन, अ क्लासिकल डांस डेडिकेटेड टू इट, है ना, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें बहुत it has got a glorious history of its own. So it's very important that it requires a lot of time that needs to be dedicated if you are writing the OPSC examination. ठीक है? Even in UPSC you find that every year 2 questions get asked from Odisha also. देखेंगे कभी आप ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में पूछ लेगा, कभी चांदीपुर बीच के बारे में पूछ लेगा, कभी पारादीप के बारे में पूछ लेगा, है ना, कटक के बारे में पूछ लेगा. So all those questions have been asked. So the first things first, how do we start the preparation? How do we start preparation? So I'm going very basic. We are going very basic as to how we should be approaching this particular examination, be it UPSC, be it state services. है ना? First things first, when we start any exam preparation, we need to have an idea about what exactly are the demands of that particular paper. See, when we are first starting the preparation, we all are clueless as to how we should be going about the preparation. So the first step that you should be doing is knowing about what exactly are the requirements and of the paper and
what is the time frame that you have set for yourself as to in how much time you would want to finish things off. तो ये बड़ा important चीज होता है कि आपका जो पहला step होता है, that should be the syllabus. First, so you need to have clarity that, say, suppose you're preparing for the year 2025. You need to have the schedule in advance with regards to these two different exams. जैसे यूपीएससी अभी इस साल हम लोग देख रहे हैं कि जून में it has been shifted to जून, right? तो जून, and likewise आपका ओपीएससी अभी सितंबर में है ना? So, for example, you need to make a chart or a table wherein you need to have a clear understanding कि भाई there is at least 3 to 4 months का gap है आपका. There's a lot of similarity between the two exams. तो ये चीज बड़ा important हो गया और बड़ा interesting भी हो गया. Smart study करना is the key. So you need to first look at the differences in the syllabus of these two exams. कि भाई क्या difference है, क्या सिमिलैरिटी है. तो एक वेन डायग्राम ऑफ सॉर्ट्स अगर आप बनाते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है एंड व्हाट आर ऑल अदर थिंग्स व्हिच आर नॉट गेटिंग आस्क्ड इन ओपीएससी एंड व्हाट आर गेटिंग आस्क्ड इन व्हाट आर वेरी स्पेसिफिकली लिमिटेड टू यूपीएससी. And when you are preparing for UPSC, simultaneously your preparation for OPSC is also getting done. Now, in those 3-4 months that you are getting, your focus very specifically should be on something which is Odisha centric. See, this is I'm telling when you have decided for the preparation in the very first year. मतलब वैसे तो people keep on preparing for number of years. First mistake that they do is that they prepare only for UPSC. And once they have gotten done with their attempts, then they look forward towards state service. This is not the right approach. हमें सारी चीज़ों को simultaneously लेकर के चलने की ज़रूरत है. That means it has to be an integrated approach. Integrated with respect to UPSC and OPSC, integrated with respect to the 3 stages of the exam: prelims, mains and interview. What usually happens is people think कि मैं इस बार prelims निकाल लूँगा, mains का देखते हैं बाद में. That is not the right approach. During the process of your preparation, you also need to work on your personality, on your communication skills, on your writing skills, on the way you look at the various events around. ये बड़ा ही comprehensive और integrated approach होना ज़रूरी है अगर आपको ये एग्जाम को क्रैक करना है तो. ठीक है, तो ये बड़ा स्पेसिफिक रखिए. मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हूँ. Steps. So we need to look at things from 2 different perspectives. The requirement of UPSC versus OPSC. ठीक है? And this preparation has to be integrated. For that, you need to have the schedule for the year. You need to have the syllabus at your disposal. Based on the syllabus, differentiate between the 2 exams. Syllabus is the key. Most of the people that never have syllabus by their side, never, रखते ही नहीं है. दुनिया जहां का काम कर लेंगे, syllabus नहीं रखेंगे. syllabus अपने सामने, study table के सामने paste करके रखिए and read them line by line. That is essential. So this is the first step. The second step, integrated with regards to the 3 stages. What are those 3 stages? Prelims, mains and interview. You need to have this in your mind very clearly that ये exam जो है ना silos में exist नहीं करता है, isolation में exist नहीं करता है. ये नहीं कि prelims की तैयारी पहले अच्छे से कर लें. I have seen so many people, all these mistakes are committed by 80% of the aspirants. They keep on studying only about prelims. We finished international relation abhi with regards to UPSC. We saw that how much answer writing is meant to be done. How much different approach we need to have with regards to the subject when it comes to mains oriented answer writing. Prelims mein it's about just knowing facts and
also having an understanding about the things, but prelims comparatively इसका approach एकदम अलग होता है अगर आप mains के point of view से देखेंगे. तो जब आपकी तैयारी होगी, it has to be integrated, means prelims come mains plus interview. What that means is that while you are starting the preparation, you need to ensure that आपका optional मेंस का चल रहा हो, प्लस आप जीएस ऐसे पढ़ रहे हो कि आपका मेंस का भी पर्पस सॉल्व हो रहा है और प्रीलिम्स का भी पर्पस सॉल्व हो रहा है. फॉर एग्जांपल, यू आर रीडिंग पॉलिटी. इन पॉलिटी you need to study both from the perspective of mains answer writing as well as with respect to prelims questions. That is the right way of going about things. अब आजकल डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं जैसे 2021 तक या 2020 तक पूछा था. अब चीजें थोड़ी सी डिटेल ओरिएंटेड हो गई हैं, थोड़ा सा मोर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ टर्न कर रहा है. ऑप्शंस आर गेटिंग मोर डिफिकल्ट टू डिसाइफर. क्वेश्चंस strength, a question's difficulty is always assessed on the basis of the nature of the options that you are being given. यही options अगर only 2, only 3 करके अगर कर देता है या only 2 pairs are correct, only 3 pairs are correct, जिस तरह के questions पूछे जा रहे हैं, question becomes difficult. मतलब आपको हर एक चीज के बारे में आइडिया होना चाहिए. Every information is what you should be having. I would request each one of you to go back home, get the syllabus printed out, है ना? Get the previous year questions printed out. OPSC, UPSC. ये आपका थर्ड स्टेज होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs. और PYQs को भी 2 स्टेजेस में, 2 स्टेजेस. 1 ईयर वाइज, एटलीस्ट 10 years, and second topic wise. ये लिखते चले जाएं. I would request each one of you to write through the various things that which are being discussed. This is the first step towards your preparation journey. What are the steps? We are going to delve deeper into OPSC also. Sir is sitting over here. He is also a mentor. So he will also be answering your questions with regards to OPSC specifically. I'm also going to give you a brief idea about the 2 exams, है ना? तो अब आप समझिए कि क्या stages हैं हम लोगों को. Comparative analysis पहले करते हैं. Then I'll delve deeper into OPSC also. I'll go through the syllabus for you guys to have a clarity as to what exactly is the demand of this particular exam that you are supposed to be giving. तो पहला चीज देखिए, स्टेप वाइज यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन यूपीएससी एंड ओपीएससी एंड द रिस्पेक्टिव डिमांड्स ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स. फर्स्ट थिंग्स, ऑलवेज हैव क्लैरिटी इन माइंड कि एक साल में आप ये दोनों एग्जाम लिख रहे हैं. और स्टेट सर्विसेज की तरफ भी लोग होते हैं, मतलब आई हैव सीन इन फ्यू स्टेट्स लाइक दिस वन, असम, बिहार, पीपल आर वेरी फोकस्ड ऑन द स्टेट सर्विस आल्सो. बट कुछ लोग जो दिल्ली चले जाते हैं वो सिर्फ यूपीएससी देते रहते हैं. वो मिस्टेक नहीं कीजिए. बोथ एग्जाम्स यू हैव टू गिव एवरी ईयर. दैट शुड बी द टारगेट. सो फॉर दैट यू नीड टू हैव द कैलेंडर बाय योर साइड, शेड्यूल फॉर द ईयर. कब एग्जाम होना है, कौन से महीने में एग्जाम होना है, दोनों के बीच में कितना टाइम है आपके पास, दोनों का सिलेबस क्या है स्पेसिफिकली, है ना? दैट इज हाउ यू शुड बी गोइंग अबाउट. सो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप, यूपीएससी वर्सेस ओपीएससी. Second, you need to have this clarity in your mind that the approach has to be integrated. What that means, the preparation at any point of time has to be cumulative, has to be integrated. Means आपको prelims, mains और interview तीनों का simultaneously तैयारी करना. अब यहाँ पे एक interesting चीज है. There's an interesting fact over here. And what happens that many a times your prelims is not going to be clear. प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा 1 साल तक, 2 साल तक, होता है ऐसा. What that does is that आप कभी मेंस की तैयारी करते ही नहीं है. Once you have given the prelims, you did not clear the prelims, now you are relaxed कि अब मैं क्या करूं. फिर आप ओपीएससी के प्रीलिम्स में लग जाएंगे. ओपीएससी का भी प्रीलिम्स मान लीजिए नहीं निकला आपका, फिर आप बाइक लेकर कैसे घूमने निकल जाएंगे क्योंकि कुछ है नहीं आपके पास अभी फॉर द रेस्ट ऑफ फ्यू मंथ्स टू डू. बट जो बंदा प्रीलिम्स निकाल रहा है वो इमीडिएटली मेंस की तैयारी में लग रहा है. ही टेक्स मच फर्दर लीप्स फ्रॉम यू फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स. ही हैज गॉट अ वेरी गुड स्टार्ट विद रिस्पेक्ट टू एनीबॉडी हु इज नॉट क्लियरिंग prelims. Why?
because for those 3 months gap that he's going to have between prelims and mains, he's going to do a lot of answer writing, he's going to do a lot of effective study. वो एकदम उसके लिए ऐसा लगेगा कि he will be studying 14, 15, 16, 18 hours, because उसको एक hope होगा कि मैं अगर means निकाल सकता हूँ. I cleared a very difficult prelim stage, so I'm in a very good position to clear the mains, and he is going to increase his chances not just for this year but for the next year also. और आप मान के चलिए you are going to be behind for a long period of time. इसलिए it's advisable in the first 2 attempts try to clear prelims. It's very important, very important. और वो तभी होगा जब आपका मेंस का भी कुछ एक कॉन्सेप्ट है, करंट अफेयर्स के बारे में भी यू हैव अ फेयर आइडिया, नॉट जस्ट बाय रीडिंग स्टैटिक बुक्स. लक्ष्मीकांत पढ़ लिए या स्पेक्ट्रम पढ़ लिए हिस्ट्री में, सब पढ़ के जाते हैं वो. हाउ आर यू गोइंग टू टेक द लीड फ्रॉम द अदर पर्सन, फ्रॉम द अदर क्राउड? फॉर दैट यू नीड टू हैव मेंस. अभी जैसे हम लोगों ने पॉलिटी के बारे में डिटेल में पढ़ा, वी डिस्कस लास्ट 50 ईयर क्वेश्चन पेपर्स, we talked about international relation, we have looked into the previous 5-7 years question paper, we looked into at least 50-60 questions, तो definitely या 40 questions तो definitely हम लोगों ने उसका analysis किया, देखा, समझा. तो वो आपको एक लीड दे देगा, rather than any person who is just reading the peripheral reading कर रहा है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का या फिर इंटरनेशनल रिलेशन का. अच्छा, इंटरेस्टिंगली इंटरनेशनल रिलेशन इज नॉट इन ओपीएससी, बट ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं है तो वो मैप के क्वेश्चंस में नहीं फिगर इन कर रहा है. इट इज कमिंग इन, इट्स जस्ट दैट अ वेरी स्पेसिफिक नेम हैज नॉट बीन गिवन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. बात समझ में आ रही है? ये चीज को समझिएगा कि यूपीएससी और ओपीएससी का सिलेबस ना बड़ा फ्लूइड है. फ्लूइड, व्हाट डज दैट मीन? मतलब एक कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है कि ये GS1 है, ये GS2 है, ये GS3 है. तो जब आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं मेंस का, तो GS2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे GS3 का क्वेश्चन ना पूछ देता है कई बार. कुछ क्वेश्चन ना इधर उधर फिगर इन करते हैं. एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन इधर उधर, एजुकेशन के कुछ क्वेश्चन इधर उधर, हेल्थ के कुछ क्वेश्चन इधर उधर. तो आपको ना पूरा साइमल्टेनियस तैयारी करके जाना है. इवन व्हेन यू आर राइटिंग GS2 यू नीड टू प्रिपेयर फॉर GS3 एंड गो एंड राइट द एग्जाम. गेटिंग द आइडिया? सो ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स के एग्जाम देने जा रहे हैं और केमिस्ट्री के एग्जाम देने जा रहे हैं तो दोनों के क्वेश्चन अलग अलग है, ऐसा नहीं होगा. सो योर प्रिपरेशन हैज टू बी होलिस्टिक, इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड, मींस इट हैज टू बी होलिस्टिक. होलिस्टिक इस चीज को समझना. यहां पर है इंटरव्यू. एक आईएएस कोई बनेगा या नहीं बनेगा ये डिसीजन इंटरव्यू में हो जाता है. क्यों? क्योंकि अगर आप परसेंटेज ऑफ स्कोर दैट यू आर गेटिंग इन इंटरव्यू को कंपेयर करेंगे द मार्क्स, द परसेंटेज दैट यू विल बी गेटिंग इन मेंस, आप देखिएगा कि मच हायर परसेंटेज होता है. आराम से आप 200 नंबर ला सकते हैं 275 में, ला सकते हैं अगर आप अच्छे, मतलब आराम से नहीं, लेकिन if you are getting 200 out of 275, अगर आप परसेंटेज के तौर पे ही देखिएगा तो इट इज मोर देन 70%. एवरेज मान लीजिए 170 भी जा रहा है आउट ऑफ 275, तो आप देखिए आराम से आपका 60% से तो ऊपर ही मार्क्स आ रहा है. जब इसी को आप मेन से कंपेयर कीजिएगा तो इट्स कंपैरेटिवली लो. क्योंकि आपको जीएस में कितना आएगा? 100, 110 आउट ऑफ 250. मान लो कि अगर आप 410, 420 नंबर भी अगर आप ले आते हो आउट ऑफ 4 पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देख रहे हैं 1000, तो 42-45% ऑफ मार्क्स यू आर गेटिंग. सो कंपैरिजन में आप इंटरव्यू में चेक कीजिए, 70% मार्क्स आप ला सकते हैं सिर्फ इंटरव्यू में. 60% तो कहीं नहीं गया. ये इसी को कहते हैं ना डीपर एनालिसिस. दिस इज नोन एज डीपर एनालिसिस, कि कहां किस किस पॉइंट पे मैं कहां हिट करूं, किस किस पॉइंट पे मैं कहां हिट करूं तो मेरा एग्जाम ये निकल जाएगा. और फाइनल लिस्ट में इफ यू लुक एट द फाइनल लिस्ट, द टॉपर एंड द लास्ट पर्सन हु इज इन द लिस्ट, इनके बीच का मार्क्स का बहुत कम डिफरेंस होता है. मे बी 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है इनके बीच. एक एक मार्क के लिए लड़ाई होगी इस फाइनल लिस्ट में. तो सोचो ये इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट हो गया. दिस इंटरव्यू क्रिएट्स एन आईएएस ऑफिसर, दिस इंटरव्यू क्रिएट्स एन आईपीएस ऑफिसर. दैट मीन्स कि आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा.
एक 20 मिनट का, एक 40 मिनट का मीट एक इंटरव्यू के प्रोसेस में आपको एक आईएएस बना दे रहा है। इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं? मोर सो इसमें वो आपके नॉलेज बेस नहीं चेक करेगा, वो आपकी पर्सनालिटी को चेक करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ऑलरेडी आप मेंस दे करके इंटरव्यू देने आए, ऑलरेडी योर नॉलेज बेस हैज बीन चेक्ड इन द मेंस, सो इट्स मोर अबाउट योर पर्सनालिटी। तो इसकी तैयारी साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कोई बात नहीं करता है, बट दैट इज हाउ योर अप्रोच शुड बी। तो इनकरेज कि जो लोग भी इंट्रोवर्ट हैं या जो भी हैं, थोड़ा बहुत अपने आप पे पॉलिश कीजिए। इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है ना, इट्स अ गुड थिंग इन अ वे दैट यू आर सिक्लूडेड, आप ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, वो एक अच्छी बात है। बट इन इंटरव्यू यू नीड टू एग्जिबिट योर टैलेंट, यू नीड टू एग्जिबिट योर कॉन्वर्सेशन स्किल्स, यू नीड टू एग्जिबिट हाउ यू थिंक। उसके लिए तो आपको बोलना पड़ेगा, और बोलना पड़ेगा तो अच्छा बोलना पड़ेगा। अच्छा बोलने के लिए आपको लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। आपको 4-6 लोग ऐसे करके घेर के बैठे हुए रहेंगे और सब आपकी तरफ देख रहे होंगे, समझ रहे हैं आप? कॉन्स्टेंटली आपको देख रहे होंगे, आप नर्वस हो जाएंगे। आपको आई कांटेक्ट रखना है, ऐसे भी नहीं आग नीचे कर लिया। और वो आपकी पर्सनालिटी को आपके इंटर करने से पहले पूरा एकदम समझ लेगा, और आपको ऐसा प्रोवोकेटिव क्वेश्चन पूछेगा कि आप नर्वस हो जाइएगा कि क्या मैं बोलूं इसमें, कैसे बोलूं मैं। प्रोवोक करेगा, आपको एंग्शियस करेगा। यू नीड टू काम डाउन योर हॉर्सेस। ऑल दैट रिक्वायर्स ट्रेनिंग, ऑल दैट रिक्वायर्स प्रिपरेशन। ऐसा नहीं होगा वन फाइन मॉर्निंग आप उठे एंड यू गो एंड गिव द इंटरव्यू। तो समझो इस चीज को, यहां तक पहुंच करके अगर आप कुछ लिस्ट में नहीं आते हैं तो इट इज द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग थिंग, मोस्ट पेनफुल थिंग। यहां तक पहुंच रहे हो तो मान के चलो कि अब आपको यू हैव बर्न डाउन योर बोट्स, अब आपको वापस नहीं आना है, अब आपको लिस्ट में आना है। उसके लिए ये तैयारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को इंटरव्यू तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो प्रीलिम्स और इंटरव्यू दोनों क्यूमुलेटिवली इंपॉर्टेंट है, और जब मेंस लिख रहे हो तो मेंस में इंपॉर्टेंट है। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है अपने अपने तरीके से। Are you getting the point? ये चीज समझ में आ रहा है? So look into the demand of this particular examination. और ऐसा नहीं कि if in the UPSC you're not able to clear the prelims, immediately get back to your zone and start preparing for OPSC. Don't spoil your OPSC just because your UPSC got spoiled. 3 महीने के बाद एग्जाम है, छोड़ो हर एक चीज को, बैठ जाओ। OPSC की तैयारी, स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद रिगार्ड्स टू OPSC। अगर आपका लेवल ठीक ठाक है यूपीएससी में तो मान के चलो यू विल बी इन अ पोजीशन टू क्लियर ओपीएससी। देयर मेनी पीपल हु आर राइटिंग मेंस ट्वाइस थ्राइस ऑफ ओपीएससी। जितना आप अपने आप को एक्सपोज करोगे ना मेंस आंसर राइटिंग से, आपकी पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा बन जाएगी कि इवेंचुअली इन अ स्पेस ऑफ 2-3 इयर्स यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। जितना आप डिनाई करोगे खुद को मेंस लिखने से बाय नॉट क्लियरिंग प्रीलिम्स, द पॉसिबिलिटी ऑफ यू क्लियरिंग द एग्जाम इज गोइंग टू बी लेस। ऐसा बहुत कम परसेंटेज ऑफ एस्पिरेंट्स होते हैं who have never cleared prelims and once they clear prelims then they clear all the stages। होते हैं ऐसे, बहुत लोग हैं भी, बट कम है उनकी। दो चीजें कम है, शुरू के 3-4 अटेम्प्ट में आपको नहीं निकलता है, 3 अटेम्प्ट में नहीं निकलता है तो पॉसिबिलिटी टू क्लियर द एग्जाम गोज डाउन हिल, ग्राफ ऐसा निकल जाता है। मोटिवेशन डाइज डाउन, the energy level dissipates, the financial pressures mount, you start questioning your abilities, start questioning yourself, starts playing in your head all the time, the relatives and everything, they start questioning you about your choices. So uske liye you need to have a very strong mental tenacity to deal with that situation. You need to get back to your motivation and pull yourself out of that situation. तो जो भी है 3 अटेम्प्ट तक में, 4 अटेम्प्ट में पूरी जान झोंको, give your best and try to clear this exam.
Are you getting the point what I'm trying to say over here? आपको समझ में आ रहा है? समझो इस चीज को. The demand of the exam and the timing of it. So this is the third step. Previous year questions. This is also very important to in order to clear the prelims, in order to clear the mains. Previous year question से क्या होगा? आपको ये पता चलेगा कि what sort of questions are getting asked in the exam. How is UPSC changing its trend over a period of years? And how you should be restarting or recalibrating your preparation. ये नहीं कि रैंडमली पढ़े जा रहे हैं बुक, नोट्स पे नोट्स बनाए जा रहे हैं, 4-5 ऑथर्स की किताब और पढ़ लिया और नोट्स को. भाई यू डोंट हैव टू बी अ प्रोफेसर, यू नॉट स्टडिंग टू बी अ टीचर, यू नॉट टीचिंग टू, यू नॉट स्टडिंग टू अपना नॉलेज बेस या स्किल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है. यूपीएससी सेंट्रिक अप्रोच रखना है. You have limited time, so your resources need to be limited. Your revisions have to be multiple. Your answer writing skill has to be on point. Your test paper solution have to be on point. तभी आपका ये एग्जाम क्लियर होगा. इसमें एकदम कोई दो राय नहीं है. So previous year questions is going to play a very important role. So I would request कि आप लोग घर जाइए तो previous year questions को को एक प्रिंट आउट लेके रखिए. सिलेबस, ये आप सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकाल करके रखिए, स्पाइरल कीजिए, एंड दैट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू शुड बी कैरिंग along with the books that you're supposed to study. So this is the first 3 stage. In the 4th stage, I would request कि कुछ टाइम if possible like-minded लोगों का एक like-minded एंड मोटिवेटेड लोगों का एक ग्रुप बनाइए और ज्वाइंट ग्रुप में डिस्कशंस कीजिए. डिस्कशंस अबाउट द इश्यूज, which are happening. This is the single most important way of doing quality preparation, जो कि मिस होता है. इसका मतलब अगर आप इसको सही से यूटिलाइज कर लो, there is going to be helping you. It is going to be helping you through leaps and bounds. But होता क्या है, ग्रुप स्टडी मतलब लोग दूसरे तरीके की बातें करने लगते हैं. They don't focus because they are not like-minded. They are not equally motivated. सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग है. तो कोशिश करो कि जो अगर आप मेंस निकाल रहे हो तो मेंस जो लोग निकाल रहे हैं उनके साथ बैठ करके पढ़ो. It's very important. ज्वाइंट स्टडी का कुछ एक पोर्शन दो, मतलब थोड़ा एक टाइम निकालो, 2 घंटा. जो लोग भी ये कहते हैं कि रूम में बंद होकर के पढ़ो, वो गलत है. मतलब एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई हैव बीन सीइंग अराउंड, आई सी दैट इज नॉट द राइट वे. कुछ टाइम अपने आप को भी दो, मेडिटेट करो. बहुत कई बार होगा फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप कर जाता है. थोड़ा सा जिम करो, दौड़ो इधर उधर, 3-4 किलोमीटर दौड़ो, कुछ म्यूजिक सुनो, खुद से भी बातें करो. अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा तुमको. आईने में देख करके बात करो खुद से, because it is going to be a lonely journey if it extends beyond 2 years. If it extends beyond 2 years, it is going to be difficult to, बहुत लोगों के लिए difficult हो जाता है because of various factors. सबके लिए आसान नहीं है. तो ये चीज को समझो. जितना मेहनत उतना ही आपको गेन भी मिलता है बाद में, है ना. और मोर सो पब्लिक डीलिंग आप करोगे, जब आप एक बार एग्जाम क्लियर कर लोगे तो यू हैव टू बी somebody who knows how to interact with people, listen to their problems. You have to be empathetic towards them. For that, public interaction is important. तो आप इस चीज को दिमाग में रखो कि ये एग्जाम का डिमांड क्या है. एक लास्ट चीज मैं यहाँ पे बता करके I'll start getting into the details of it. 5th, आप समझो कि after clearing the exam, why the exams have been designed in such a way that it becomes very stressful. Because after clearing the exam, you're supposed to be working in situations and conditions and in places where the resources are not going to be ample. छोटे छोटे जगहों में आपको डीएम के तौर पे, एसडीएम के तौर पे पोस्टिंग मिलेगी, डीएसपी के तौर पे पोस्टिंग मिलेगी. वहां पर आपको ऐसे ऐसे लोगों से डील करना पड़ेगा
जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, आपको अपने बॉसेस से डील करना पड़ेगा जो मे बी इतने पढ़े लिखे नहीं है। उनके टैंट्रम्स, उनके विम्स, उनके फैंसीज को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको इट्स नॉट इजी टू डील विद पॉलिटिशियंस। उड़ीसा में मे बी इजी हो सकता है, बिहार में चले जाओ, यूपी में चले जाओ, यू विल फील आउट ऑफ प्लेस। पता नहीं किस किस्म के लोगों से हमें डील करना पड़ रहा है, नॉट दैट एजुकेटेड, और आप इतना पढ़ करके आए हो। तो ह्यूमन डीलिंग इज द की, and that requires it becomes very stressful and dry at times. Your job demand is very strenuous, maybe at times coming at the cost of your family. तो रिसोर्सेज एम्पल नहीं है सरकार के पास, रिसोर्सेज नहीं है, पब्लिक डीलिंग इतना हाई है। अलग अलग, कोई एक बूढ़ी औरत आ जाएगी, 70 साल की ट्राइबल औरत आ जाएगी, उसके बेटे ने उसको घर से भगा दिया है, उसके पास खाने को अनाज नहीं है, वो आकर के अपना प्रॉब्लम आपको उसकी उड़िया लैंग्वेज में बता रही है। आप हो दिल्ली से, आपको आता नहीं है, तो आपको उड़िया लैंग्वेज सीखना पड़ेगा उड़ीसा में आकर के। वो होता है, आप कोई भी चला जाए किसी स्टेट में, यू हैव टू लर्न दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू डील विद द लोअर इक्लियंस ऑफ द सोसाइटी। वो करो, फिर आपको पॉलिटिशियंस से डील करना पड़ेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग से डील करना पड़ेगा, आपको पॉलिटिक्स से डील करना पड़ेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स से डील करना पड़ेगा, फैमिली से डील करना पड़ेगा। You will be staying in a smaller place and your family, maybe if you get married to somebody who is rich, typically ये भी होता है, शादी कर लिया है भाई, बैलेंस ही नहीं बन रहा है। The person, the lady or maybe the husband staying in some big city, how are you going to deal with all that situation? It requires a lot of stress handling, tenacity in your mind. So this exam is preparing you for all of that. How to deal with stress, how to deal with difficult circumstances, how to deal with situations which are not entirely turning in your favor. समझो, कोई भी चीज जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। दिन भर में 2 एग्जाम दे रहे हो, 3-3 घंटे का मेंस में, प्रीलिम्स दे रहे हो, फिर मेंस दे रहे हो, सीसैट भी दे रहे हो, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो, पॉलिटी भी पढ़ रहे हो, साइंस एंड टेक भी पढ़ रहे हो। तो एक तो जनरलिस्ट, जनरल स्टडी कर रहे हो, इसलिए उसको जनरल स्टडीज कहते हैं, बिकॉज यू आर बिकमिंग जनरलिस्ट, यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट यू हैव टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। इसलिए यू डोंट हैव टू डेल्व मच डीपर इनटू द सब्जेक्ट। पीएचडी नहीं करना है उसमें, अपने ऑप्शनल में करो बस। तो ये तो हुआ आपका स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर दैट। ठीक है, थोड़ा सा मैं बस आपको ये बता देता हूँ कि किस तरीके से सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख लें कि ओपीएससी और इसका मैं सिलेबस एक बार आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ओपीएससी और यूपीएससी के सिलेबस में क्या है। तो बेसिकली दे आर गोइंग टू बी 4 पेपर्स, जिसको जनरल स्टडीज हम लोग कहेंगे, है ना। और JS1 में अगर हम लोग देखें तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी, इसमें उड़ीसा के बारे में भी आपको पढ़ना है। You have to talk about Odisha also. That is where firstly UPSC और इसमें डिफरेंशिएट होता है। उड़ीसा स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा स्टेट सर्विस के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो देखो, जैसे इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। कलिंगा आर्किटेक्चर देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब हम लोग अगर इन जनरल भी अगर यूपीएससी में ही पढ़ते हैं तो इतने सारे जो टेम्पल्स हैं सब उड़ीसा हो गया, या फिर साउथ के टेम्पल्स हो गए, है ना, ये दीज आर की। तो उड़ीसा के बारे में वैसे ही आप पढ़ते हो। यूपीएससी के प्रीलिम्स में हर बार अशोका धौली इंक्रिप्शन, धौली के बारे में पूछा एक बार 2015 में, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम लोग देखते हैं, उड़ीसा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री में आ जाता है। अशोका से क्वेश्चंस आते हैं, धम्मा पॉलिसी पे क्वेश्चंस आते हैं, कलिंगा वॉर पे क्वेश्चंस आते हैं, उसके आर्ट एंड कल्चर पे सवाल आता है उड़ीसा के, है ना, उसके बीचेस पे क्वेश्चंस आता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड पे उड़ीसा पे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब देखो किस तरीके से कल्चर के बारे में आपको पढ़ना है, टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ उड़ीसा के बारे में आपको पढ़ना है, लिंगराज टेम्पल के बारे में आप पढ़ना है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट इन उड़ीसा, उड़ीसा में किस तरीके से सोसाइटी और कल्चर का डेवलपमेंट हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स से आपका कल्चर चेंज हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है, किस तरीके से कोस्टल स्टेट होने की वजह से आसपास के जो भी आसियान कंट्रीज हैं या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनके साथ आपका ट्रेड रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चाहे इंडोनेशिया हो चाहे मलेशिया हो, है ना। और उसकी वजह से कल्चरल एक्सचेंजेस कैसा हुआ है, उससे आपके डांस फॉर्म्स में, उसके आपकी ईटिंग हैबिट्स में, कोस्टल स्टेट होने की वजह से आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, उसमें फिश का क्या रोल है, या ब्लू इकोनॉमी का क्या रोल है,
वो सारी चीज़ों को आपको बड़ा होलिस्टिकली पढ़ना पड़ेगा। वे ऑफ लाइफ, कम्युनिटीज़ कैसी हैं, उड़ीसा में जो कल्चर्स हैं वो उनके जो सोसाइटी का जो डिवीजन है कास्ट बेसिस पर कैसा है, ट्राइब के बेसिस पे कैसा है, पीवीटीजीज का क्या हाल है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सबसे ज्यादा ट्राइबल ग्रुप्स पूरे इंडिया में, उड़ीसा में आई थिंक 42 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी का आपका एक सिनारियो क्रिएट कर रहा है। साथ ही साथ जो डेवलपमेंट भी होना है, तो हम लोग देखते हैं कि वहां पर फैक्ट्रीज ही बननी है, इंडस्ट्रीज ही बनना है, और दैट ऑफन कम्स एट द कॉस्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया। उड़ीसा में सबसे ज्यादा मिनरल्स है, तो वो इंटरेस्टिंगली एंड दोज मिनरल्स आर फाउंड वेयर वी फाइंड दैट द ट्राइबल पीपल लिव, दे स्टे। That requires clearance of the forest area. That means it has got a direct impact on the environment. That requires the displacement of the people from the regions where they have been staying. That means their rehabilitation has to be taken into consideration. Cutting down a forest means economic environment impact assessment has to be taken into consideration. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपको होलिस्टिकली देखने की जरूरत पड़ती है जब आप पढ़ते हैं। तो सोसाइटी, कल्चर, डेवलपमेंट क्या होता है, सब चीज को जोड़ करके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ GS1 में तो सिर्फ हिस्ट्री के एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट से भी इसको आप जोड़ करके पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है और एनवायरनमेंट से भी जोड़ करके पढ़ना है, ठीक है। भक्ति मूवमेंट पढ़ना है, उड़ीसा में भक्ति मूवमेंट कैसे हुआ और कैसे उसका इम्पैक्ट हुआ सोसाइटी पे। फिर हम लोग देखेंगे ग्रोथ ऑफ उड़िया लैंग्वेज and literature and the development of Odia literature. Festivals के बारे में पढ़ेंगे। कटक में फेस्टिवल जो होता है, when I visited a couple of days back, I got to know a lot many things I was not knowing. एशिया का सबसे लार्जेस्ट वहाँ पे फेयर होता है, फेयर लगता है, बाली फेयर। तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस रहे, हिस्टोरिकली क्या है, वो जाकर के समझिए, थोड़ा सा ट्रैवल कीजिए, जाकर के म्यूजियम्स वगैरह विजिट कीजिए। अभी आपका 1-2 साल म्यूजियम ही विजिट करना ज़्यादा सही रहेगा। जाकर के समझिए कि क्या है बोट मेकिंग, क्या है, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सोसाइटी में, उससे आपके कल्चर में क्या चेंजेस आए हैं, ईटिंग हैबिट्स एंड एवरीथिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखते हैं। हेरिटेज, तो ये बड़ा बड़ा वर्ड है, हेरिटेज, लेगेसी। हेरिटेज मतलब आपका एक पास्ट, ग्लोरियस पास्ट, और सोसाइटी कैसे डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। इंक्विजिटिव रहिए जानने के लिए। अच्छा, पटनायक्स क्या होते हैं, मोहंतीज क्या होते हैं, या दास क्या होते हैं, ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सोसाइटी के बारे में रिफ्लेक्ट करता है कि भाई क्या होता है, किस तरीके से होता है। मतलब जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अंदर एक इंक्विजिटिवनेस होना चाहिए कि आप सोसाइटी, भाई उड़ीसा की सोसाइटी में कौन लोग हैं जो प्रोमिनेंट हैं, कौन से लोग हैं जो सोसाइटी में सो कॉल्ड अपर इक्लियंस में है, और ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट जॉब्स में कौन ज्यादा लोग हैं, किस तरह, बाकी जो लोग हैं जो ट्राइबल ग्रुप से आते हैं उनका क्या पोजीशन है। एक ज्योग्राफिकल या एक इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, उसके बारे में बात करो। इसको ना बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ोगे तो तुम्हें मजा आएगा कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, उड़ीसा की सोसाइटी में स्पेसिफिकली क्या चल रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट। फेस्टिवल्स आर नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर कल्चर। फेस्टिवल्स क्यों करते हैं? हो सकता है हार्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं, हो सकता है कि कुछ बारिश की डिमांड करते हैं ऊपर वाले से, तो उसके लिए हम लोग फेस्टिवल करते हैं, या बहुत सारे जो हम लोग सैक्रिफाइसेस करते हैं, है ना, जिसको कहते हैं, मतलब शुरू में क्या होता था, बुल सैक्रिफाइस, अश्वमेध होता था, क्या होता था, ये सब, ये सारी चीजें क्या है, भगवान को प्लीज करने का एक मैकेनिज्म्स। उन सब के बारे में समझो कि क्या है, किस तरीके से उड़ीसा की सोसाइटी में कैसे डेवलप किया, और फेस्टिवल्स का शेप वो कैसे ले रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे फिर भाई कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी, कौन कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं, पर्सनालिटीज, इश्यूज, ये सारी चीजें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको यूपीएससी में भी पढ़ना है। फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल में उड़ीसा के लोगों का क्या, उड़ीसा के लीडर्स का क्या रोल रहा है, वो स्पेसिफिकली पढ़ो। कौन से विमेन हैं जो विमेन स्ट्रगल में, विमेन के बारे में, विमेन के राइट्स के बारे में बात कर रही थी, या फिर तुम ऐसे पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन के बारे में पढ़ो, कलिंगा वॉर के बारे में पढ़ो, डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा हो गया, है ना, द भौमा काराज एंड द सोमावमसीज, इनके बारे में पढ़ो। अर्ली रेजिस्टेंस मूवमेंट उड़ीसा के बारे में, पायक रिबेलियन, ये तो यूपीएससी में पूछता है, पायक रिबेलियन, है ना। वीर सुरेंद्र साय के बारे में, रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 में उड़ीसा के लीडर्स का क्या रोल रहा, ये सारी चीजों को तुमको देखना पड़ेगा। उड़ीसा प्रोविंस कैसे बना, अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ द बंगाल,
प्रोविंस 1911 में 1935 दो आई थिंक इट गॉट क्रिएटेड इन 1935 if I'm not mistaken 36। तो क्यों क्रिएशन अलग हो रहा था, क्या कल्चरल एफिनिटी है उड़ीसा, बंगाल और बिहार के लोगों में, इस तरीके की चीजों को तुमको देखना पड़ेगा। मंडल मूवमेंट, प्रजा मंडल मूवमेंट, ये सारी चीजों को तुमको पढ़ना पड़ेगा। प्रिंसली स्टेट्स इन उड़ीसा, सोशल रिफॉर्म्स, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं इंडियन सोसाइटी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रोल ऑफ विमेन, विमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉवर्टी, डेवलपमेंट इश्यूज, अर्बनाइजेशन। हम लोगों ने पूरे अपने डिस्कशन में सोसाइटी के बारे में ये ऑलरेडी डिसाइड पढ़ा भी है कि कैसे माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, तो कैसे उसके सोसाइटी पे इम्प्लीकेशन पड़ता है, कैसे आप एक जॉइंट फैमिली से मूव करते हैं एक न्यूक्लियर फैमिली की तरफ, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो सोसाइटी में क्या क्या, अर्बनाइजेशन से क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, पढ़ चुके हम लोग ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ ट्राइब्स इन द ट्राइबल पॉपुलेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी में आप पढ़ेंगे, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ेंगे ट्राइब्स के बारे में। और उड़ीसा को आपको ट्राइब के एस्पेक्ट से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये सब जब आप सिलेबस देखोगे तब पता चलेगा ना कि क्या आपसे पूछने के लिए बोल रहा है। अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हो रहा है, अर्बन सेंटर्स बन रहा है, स्टेडियम है मान लीजिए आपका यहाँ पर, उसके बगल में जो आप देखते हैं कि बहुत सारे शॉप्स या कहीं पे भी बहुत सारे घेटोस डेवलप हो रहे हैं। वो घेटोस क्यों बन रहे हैं, कुछ जगह में घेटोस क्यों है, बाकी जगह में लोग इतने अच्छे कंडीशंस में क्यों रह रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, क्राइम क्यों बढ़ रहा है उस रीजन में जहां पे घेटो। ये सिर्फ इंडिया का या उड़ीसा की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। यूएस चले जाओगे तो हार्लेम्स होते हैं, वहां पे ब्लैक कम्युनिटीज होती है, वहां पे आप देखोगे कि क्राइम के इंसिडेंट्स ज्यादा होते हैं। नेबरहुड कहते हैं उनको, नेबरहुड। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। और ये ब्लैक वर्सेस व्हाइट का डिस्पैरिटी वेस्ट पे भी चलता है, वैसे यहाँ भी चलता है। तो ये सब सोशल इंप्लीकेशंस है ऑफ एन इवॉल्विंग सोसाइटी। माइग्रेशन के आउटकम्स हैं ये सब, है ना। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, आजकल तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। कम्युनलिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है ना, रीजनलिज्म क्या है। रीजनलिज्म मतलब वी बिलोंग हियर, सन ऑफ द सॉइल, सन ऑफ द सॉइल थियरी होता है। मैंने 1000 आपको एग्जांपल्स दिया कि जब इंडियन इंजीनियर्स यूएस जाते हैं तो यूएस वालों में फीलिंग आती है कि ये इंडियंस आ गए हमारे जॉब खाने, because they come cheap, they are more hardworking, they have more drive because they are going for a better life to US। ठीक उसी तरीके से जब एक बिहार का, एक यूपी का व्यक्ति उठ करके महाराष्ट्र चला जाएगा या उठ करके दिल्ली चला जाएगा या मान लो उड़ीसा आ जाएगा for better job opportunities, the people of that particular region are going to feel disgruntled about that person's presence because they feel that वो हमारे जॉब पे इम्पैक्ट कर रहा है हमारी सोसाइटी में। यही नॉर्थ ईस्ट में जो पूरा इशू है वो क्या है, मेथी ट्राइब्स का इशू। ये क्या है भाई, और दूसरे ट्राइब्स आकर के उनको बसा देने की वजह से हमारे जो राइट्स हैं, लैंड राइट्स, वो सब इम्पैक्ट हो रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा हैजोंग्स के बारे में, हमने पढ़ा इतने सारे लोगों के बारे में जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट का पढ़ रहे थे, बांग्लादेश ट्राइब्स, रेफ्यूजीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सबको जोड़ करके पढ़ो और यहीं से एक फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म भी होता है, ठीक है। फिर ज्योग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सुनामी कैसे आता है, अभी ताइवान में आया, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी जापान में आता रहता है। तो जैसे तुम वो न्यूज पढ़ रहे हो, गेट बैक टू द कॉन्सेप्ट्स एंड राइट इट डाउन। साइक्लोन्स कैसे आते ही रहता है ईस्टर्न कोस्ट में इंडिया के, जब तक अभी कुछ महीने उड़ीसा में आया था क्या, कुछ महीने पहले, पिछले साल आया था ना। तो पढ़ो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लोन। और इससे जो डिजास्टर होता है, डिजास्टर को कैसे इंपैक्ट करता है। उड़ीसा के नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स, आयरन ओर, बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट पाया जाता है। उड़ीसा का फिजियोग्राफी और रिवराइन सिस्टम, महानदी रिवर, और भी बहुत सारे रिवर्स हैं जो चल रहे हैं। ऋषिकुल्या के बारे में पढ़ो, ऋषिकुल्या क्या है ना, इन सब चीजों के बारे में पढ़ो, कटक के बारे में पढ़ो। तो ये तुम्हारा रिवराइन सिस्टम क्या है, वो सारी चीजों को तुमको यू हैव टू स्टडी अंडर द ज्योग्राफी। देखो विद स्पेशल रेफरेंस टू उड़ीसा, स्पेशल रेफरेंस when it has written, that means you need to focus on the special reference, you have to give importance and relevance to उड़ीसा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज को उड़ीसा के रेफरेंस से पढ़ो, हिस्ट्री को उड़ीसा के रेफरेंस से पढ़ो, ठीक है, सारी चीजों को। फिर आ जाता है GS2, जनरल स्टडीज 2।
उसमें आपको गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, पॉलिटी के बारे में पढ़ना है, सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ना है और इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में पढ़ना है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी में पढ़ा सारी चीजें, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स 1773, 1793, 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, 1947, इतनी सालों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, सब चीज के बारे में पढ़ा हम लोगों ने उसके नोट्स बनाए, इनके बीच के जो लिंकेजेस है उसको समझने की कोशिश की। हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स से हम लोग इवॉल्व करके कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन तक आए। तो ये सब आपको पढ़ना है यहाँ पर भी, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, यूनियन और स्टेट के बीच के जो रिलेशंस है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर के बारे में, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्रीज। ऐसा तो है नहीं कि हमारा सारा कॉन्स्टिट्यूशन में व्हाटएवर इज रिटन इज न्यू। वी हैड paucity of time, हमारे पास टाइम कम था when the constitution was getting framed। एक लिमिटेड टाइम में हम लोगों ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। तो ये हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है उनको पिक एंड चूज करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे डिजाइन किया है विच सूट्स आवर सेंसिबिलिटीज। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरीके से कंपैरिजन करना हमारे लिए जरूरी है। Why are we comparing it in the very first place? So that we have an idea ki what all are the differences in the various constitutions, and UPSC and OPSC both have been asking questions from here. Parliament के बारे में पढ़ना है, state executive के बारे में पढ़ना है, ठीक है, representation of people के बारे में, अभी election आ रहा है तो ये बहुत important topic है, RPA, Representation of People's Act। देखो यहाँ पे ओडिशा राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट, सब सिलेबस में जो जो दिया है ना उसको अंडरलाइन करो कि कहाँ कहाँ से उड़ीसा के बारे में क्या क्या चीजें पूछ रहे हैं। उड़ीसा राइट टू पब्लिक एक्ट, उड़ीसा लोक आयुक्त एक्ट, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के बारे में पढ़ो, कौन कौन से पोजीशंस हैं, कौन कौन से आपके स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी, हम लोगों ने इतने सारे पढ़ा, NHRC के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ा है, UPSC के बारे में देखा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है, कौन से स्टैट्यूटरी पोजीशंस है, कौन कौन से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस अभी आपने देखा भगवान सर ने लिया, तो एक तरीके से उसके भी अलग अलग तरीके से, सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, पंचायती राज, उड़ीसा एंड इट्स नेबरहुड। देखो ये उड़ीसा एंड इट्स नेबरहुड एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अंडरलाइन करो, जहां जहां उड़ीसा दिख रहा है उसको अंडरलाइन करो, ठीक है। दिस इज फिर सोशल जस्टिस, उसी GS2 में आता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस में जो भी समाज के कमजोर वर्ग हैं, जस्टिस किसको देना है आपको? सोशल जस्टिस मींस व्हाट? यू आर प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सम एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो जस्टिस टिपिकली का जो कॉन्सेप्ट है वो एसोसिएटेड होता है somebody who is not evenly positioned, somebody who is at the lower pedestal। जैसे so to say, जैसे आपके ट्राइबल पीपल हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गया, विमेन, चिल्ड्रन, LGBTQIA वाले लोग, LGBTQ है ना, वो कम्युनिटी हो गई। फिर हम लोग देखते हैं माइनॉरिटीज हो गया। जस्टिस का एस्पेक्ट ओल्ड पीपल हो गए, बूढ़े लोग, LGBTQ में ठीक आपका ट्रांसजेंडर ही है, चिल्ड्रन हो गया। इन सब के बारे में पढ़ना है सोशल जस्टिस में। यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग बाय रोट, खुद सोचो ना किसको जस्टिस दे रहे हो, कौन देगा वो जस्टिस। जस्टिस होने के लिए आपको जुडिशियरी और आपके इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होने चाहिए। दैट इज नोन एज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जुडिशियरी हैज टू बी वेरी रोबस्ट, तभी आप जस्टिस दे पाओगे। जस्टिस सीख करने के लिए वो कहां जाएगा? कोर्ट्स। जस्टिस सीख करने के लिए वो कहां जाएगा? इंस्टीट्यूशंस। तो इट इज ऑल अबाउट दैट। विमेन इंपावरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, SHGs में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इंडिया और उड़ीसा में अलग अलग कौन कौन से इश्यूज हैं अलग अलग सेक्टर्स में जो राइज हो रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ पीपल, है ना, इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ अलग अलग सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, कैसे बच्चों को ठीक से पोषण नहीं मिल पाता है तो उनके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज, बोथ इंडिया एंड उड़ीसा। उड़ीसा में क्या इशू है, उड़ीसा में कैसे डिफरेंट है इंडिया के कंपैरिजन में, कंपेयर करो। टोटल फर्टिलिटी रेट, मटर्निटी मोर्टालिटी रेट, चाइल्ड मोर्टालिटी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, क्या डिफरेंस है। विमेन दे आर डाइंग व्हाइल दे गिव बर्थ टू द चाइल्ड, ऐसा मतलब मटर्नल मोर्टालिटी रेट क्यों ज्यादा है।
तो ये सब चीजों को पढ़ने के लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक जब आप एक एस्पिरेंट एक यूपीएससी जब आईएएस बनता है ना, तो उसको हर एक चीज के बारे में एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग रहती है। होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मतलब डजंट मीन कि पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन रहता है, तो उसको बात करने के लिए उसके पास 50 टॉपिक्स पे वो बात कर सकता है, इसीलिए कर पाता है ना। इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, इन सब के बारे में। तो आपका जनरल स्टडीज 2 हो गया। जनरल स्टडीज 3 में हम लोग देखेंगे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, यहीं पे जीएस 2 में इंटरनेशनल रिलेशन होता है यूपीएससी में, आपके उड़ीसा में नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन मतलब इंडिया और उसके इर्द गिर्द के कंट्रीज के साथ उसका क्या टर्म्स रिलेशन, कहीं रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, कहीं पे इजराइल पैलेस्टाइन वॉर हो रहा है, तो उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। यू डोंट हैव टू स्टडी इन उड़ीसा, ठीक है। जनरल स्टडीज 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट पढ़ना है, सिक्योरिटी पढ़ना है, बॉर्डर सिक्योरिटी क्या है, इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। उड़ीसा से रिलेटेड सारी चीजें, गवर्नमेंट बजटिंग देखो इंडिया का और उड़ीसा का, लैंड रिफॉर्म्स इंडिया और उड़ीसा का, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में आप पढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन उड़ीसा, उसके क्या इश्यूज हैं, उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। उड़ीसा सेंट्रिक पढ़ाई करनी है आपको। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे तो बहुत सवाल आते हैं, प्रीलिम्स में भी सवाल आएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज जो दिया जा रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी मिशंस, एनिमल रियरिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न, अलग अलग तरीके के जो इरिगेशन होते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग, ये सब होता है सारा इंडिया और उड़ीसा दोनों को ध्यान में रखते हुए। सो एग्रीकल्चर यू हैव टू स्टडी, इसको स्टार मार्क भी कर लो कि एग्रीकल्चर पढ़ना है हम लोगों को अच्छे से। सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉर्डर सिक्योरिटी, क्या क्या थ्रेट्स हैं हम लोगों को टेररिज्म से, नक्सलिज्म टेररिज्म में क्या फर्क है ना, ये सब जो कॉमन डिफरेंसेस हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या थ्रेट है, साइबर सिक्योरिटी का क्या थ्रेट है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आजकल क्या क्या हो रहा है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, बीएसएफ क्या है, सीमा सशस्त्र बल क्या है ना, आसाम राइफल्स क्या है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में, एनएसजी के बारे में पढ़ना है, जो गार्ड कर रहे हैं हमारे कंट्री के अलग अलग पोर्शन में, और उड़ीसा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है कौन कौन सी एजेंसीज है उड़ीसा में। ये आपका सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाएगा। और लास्ट में है आपका जनरल स्टडीज 4, जिसमें कि आपको एथिक्स के बारे में पढ़ना है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स अक्सर क्या होगा कि आप इस जॉब में जाएंगे, आपको एक दोराहे पे आप आकर खड़े हो जाएंगे, वेरी देयर इज गोइंग टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर सोल एंड व्हाट इज नीडेड टू बी डन। पीपल विल कम एंड मे बी ट्राई टू influence you through money, through power. You will be left in a situation where you do not know how should you be going about that situation. ऐसे situation में आपका ethics will come to play. Ethics समझ में आ रहा है? Ethics is a culmination of everything that you have incorporated over the period of various years of your formative years. आपकी एजुकेशन, आपका कल्चर, आपकी परवरिश जो आपके माँ बाप ने आपको दी है, आपकी स्कूलिंग, आपका रिलीजन, आपके पर्सनल जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इन सब के कॉम्बिनेशन से एक इंसान बनता है, शेप अप करता है। उसका सोल, उसका जो हार्ट, उसकी सेंसिबिलिटीज, उसकी एम्पैथी, उसका एक आउटलुक समाज के प्रति, औरतों के प्रति, बच्चों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, वो उससे शेप अप होता है। और आप जाकर के कहीं पर बस एक काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हो, आपकी कर्म भूमि है, उन सब पे, या घर आ रहे हो, वहां पर वो उसका रिफ्लेक्शन होता है। बूढ़ों की तरफ आपका क्या है, आपके परिवार की तरफ आपका क्या रवैया है, आपके माँ बाप की तरफ आपका क्या रवैया है, आप जहाँ काम करते हैं वहां क्या रवैया है, क्या आप पे आपका जो जहां पे आप काम करते हो वहां पे ट्रस्ट कर सकता है पैसों के साथ, क्या आपको एक जिम्मेदारी वो दे रहा है कि आप एक जिले में जाकर के डीएम बनो, क्या आप उसके रिसोर्सेज को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप एक ट्रस्टी के तौर पे जहां पे आपको रखा गया आप उसको उसके प्रति अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे। Getting the point? All those things have to be taken into consideration. It's just like that you are running a company and you want to hire somebody and you want to put that particular person in a certain position of trust and he betrays your trust by embezzling the money out. आप डीएम बन जाते हो, आप सरकारी खजाने से पैसा निकाल करके अपने
पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज कर रहे हो, या किसी को आप फेवरेबल आदमी को टेंडर दे रहे हो, तो आप अपना जो दायित्व है उसके साथ आप जस्टिस नहीं कर रहे हो, तो इन सब चीजों में आपका एथिक्स आएगा, इंटीग्रिटी आएगी, एप्टीट्यूड आएगा. दैट इज ऑल दैट यू हैव टू स्टडी इन जनरल स्टडीज 4. ठीक है, so that was pretty much about the syllabus of UPSC, syllabus of उड़ीसा. दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं उसको हाईलाइट किया हम लोगों ने. आपका अप्रोच कैसा रहेगा उसके बारे में हम लोगों ने बात करी. आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, कितने टाइम फ्रेम में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को देखना है, इंटरव्यू में कैसे हैंडल करना है, प्रीलिम्स में कैसे हैंडल करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की. नाउ सर इज गोइंग टू टेक फ्रॉम हियर, आई विल इंट्रोड्यूस सर. वो आकर के आपसे उड़ीसा से जुड़ी हुई बातों के बारे में और डिटेल में बात करेंगे. So I'm going to be your mentor for the GS topics, and when you delve into the syllabus of this whole preparation, as sir said, it has to be a very integrated approach. This is the first thing. When you look at the overlapping aspects of UPSC and OPSC, you may see the first topic. How many of you have gone through the syllabus? How many of you have gone through the syllabus before also? So you might have find this topic as a part of UPSC syllabus. See these parts. अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि किस पे कितना इम्पेटस देना है? तो हमारे पास ब्लूप्रिंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम जब देखेंगे तो उस वक्त आपको मालूम चलेगा कि किस टॉपिक को कितना जोर देना है. दिस ईयर इटसेल्फ व्हेन यू गो टू द मेंस क्वेश्चंस, एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस आपको मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़नी है. व्हेन यू स्टडीड फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव, you can also hit the prelims part also. These are the broad topics. These are the broad topics in OPSC. When you read all these topics, one second, yes. In the prelims also, you might have seen this topic. There has been question from Bhomakaras. I am picking up a single topic to make you understand how to hit the target. ये जितने भी डायनेस्टिक हिस्ट्रीज मेंशन्ड हैं, they are mentioned for a reason. Most of the temple architecture, as you might know, has been done by whom? If you may say, Gajapatis. Why are these Bhomakaras known for? Anybody? Exactly. This is precisely what they are known for. So each and every dynastic history, the 5 or 6 the mentioned ones, उनका एक पर्पस है. सो दिस इज द सोल पर्पस. ये भूमकराज को आप जब पढ़ेंगे तो उस समय आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ वुमेन रूलर्स थे. इन द सेम वे जैसे सर ने बताया, रीजनलिज्म आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए देयर इज अ सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्राइन. व्हेन यू राइट एन आंसर ऑन रीजनलिज्म, यू हैव टू मेंशन व्हाट इज सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्राइन. अगर आप उसे मेंशन नहीं करते हैं, देन द एग्जामिनर गेट्स टू नो दैट द पर्सन हु इज राइटिंग दिस एग्जामिनेशन डजंट हैव द डेप्थ ऑफ द टॉपिक. इन द सेम वे, व्हेनेवर यू हिट ऑल दिस टॉपिक्स, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इसके बारे में पिक्यूलियरिटी क्या है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, आपको मालूम चलेगा कैसे पिक्यूलियरिटी क्या है. So what is your blueprint? आपके पास क्या होने चाहिए? What are your weapons? The first thing is the syllabus, which is in front of you. Second thing is previous year questions. सिर्फ previous year questions से तो काम नहीं बनेंगे, because if you are new to it, and moreover the syllabus has changed in the recent past. अभी 1-2 साल में तो syllabus change भी हुआ.
सो हाउ डू यू नो कि इसका आंसर कैसा होना चाहिए? कुछ टॉपर्स कॉपी आप देखें. व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन, आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है. हाउ डू यू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन? आपके पास कुछ तो फुटप्रिंट होना चाहिए जिसको आप फॉलो करेंगे. तो एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हैं, फॉलो सम टॉपर्स कॉपी विच इज वेरी इजीली अवेलेबल. 2-3 इंट्रोडक्शन आप देखेंगे तो एटलीस्ट यू कैन हिट द नेल ऑन इट्स हेड. जब आप एग्जाम दे रहे हैं उस समय आपको ये तो मालूम चले कि इस क्वेश्चन में लेट्स से रीजनलिज्म, हाउ टू इंट्रोड्यूस दिस क्वेश्चन. डेफिनेशन से करना सही होगा, या फिर कुछ डेटा फैक्ट्स के साथ करना सही होगा, या फिर कुछ करंट इवेंट्स के साथ करना सही होगा. सो दिस इज अपॉन योर विजडम, हाउ डू यू हिट इट. सो दिस इज वन थिंग. जितना भी सिलेबस मेंशन्ड है, यू मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. यूपीएससी में जो भी जीएस का क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप उसे डिवाइड करते हैं, इफ यू गो ऑन डिवाइड द सिलेबस इनटू सम एस्पेक्ट्स, पहला एस्पेक्ट है फैक्चुअल क्वेश्चंस. एंड द ट्रेंड इन यूपीएससी ऐसा हो गया कि अब वो फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं. बट ओपीएससी में ऐसा ट्रेंड है. GS1 इस बार they ask directly about the Bhitarkanika National Park. You have to write a note on Bhitarkanika National Park. What aspect they are asking? It is upon your wisdom. What do you incorporate in your answers? Isn't it? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, that too for 20 marks. So you must have a very holistic idea about it. दूसरी बात, this is about informative and data-based questions, जो डायरेक्टली आपके सिलेबस से उठाया गया है. इफ दे आस्क यू, ऐसे प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कलिंगा वॉर एज अ क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछा गया है ऐसा. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कलिंगा वॉर को हम लिखे कैसे. हाउ डू यू इंट्रोड्यूस दैट सब्जेक्ट? हाउ इज योर आंसर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. सेकेंड क्वेश्चन इज एनालिटिकल क्वेश्चंस. कुछ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस होंगे जो यूपीएससी का ट्रेंड है. तो वो आपको कैसे आएगा? वंस यू गेट टू नो अबाउट द सिलेबस, क्वाइट ब्लंटली सेइंग, आपको सिलेबस के एक एक वर्ड्स याद होने चाहिए. इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, आपको एक एक वर्ड याद होनी चाहिए. आपको ये याद होना चाहिए कि हिस्ट्री में इतने पॉइंट्स हैं, किस पॉइंट्स में कितने पैरामीटर्स, कितने टर्म्स हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले खारवेला के बारे में पढ़ना है, उसके बाद भौमकारास, सोमवंशीस, गंगस, गजपतिस. ये इस सीक्वेंस में क्यों है? जिसने सिलेबस डिजाइन किया है, इट इज फॉर अ पर्पस. इससे आपको ये भी मालूम चल जाएगा दिस इज अ पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी. दे आर क्रोनोलॉजिकली प्लेस्ड. जिसने ये एग्जाम दिया है उसे मालूम भी हो गया होगा, लेकिन इसे डिसाइफर भी तो करना होगा. यू हैव टू इंटरप्रेट इट इन योर ओन वे. टेक अ पीस ऑफ पेपर. आप जब इन सारे डायनेस्टिक हिस्ट्रीज को पढ़ेंगे, आई एम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई एम टेकिंग जस्ट अ सिंगल टॉपिक टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू गो एंड अप्रोच दिस सब्जेक्ट. जब आप डायनेस्टिक हिस्ट्रीज पढ़ते हैं तो क्या क्या एस्पेक्ट पढ़ना चाहिए, आप ही बताएं. लेट्स कीप इट वेरी इंटरेक्टिव. आप ही बताइए क्या पढ़ना चाहिए. इफ यू आर स्टडिंग अबाउट अ हिस्ट्री ऑफ ए पर्टिकुलर, लेट्स से डायनेस्टी, जब आप मुगल के बारे में पढ़ते हैं, मुगल एम्पायर, तो आपने जब शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं तो क्या फर्स्ट थिंग्स व्हाट कम्स टू योर माइंड? एग्जैक्टली. जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं तो क्या आता है पहले दिमाग में? सॉरी, या व्हाट काइंड ऑफ अचीवमेंट्स? एक पर्टिकुलर अचीवमेंट है जहांगीर का. एग्जैक्टली, है ना. जब अकबर के बारे में पढ़ते हैं, ही एक रिलीजन बनाया है उन्होंने. उसी तरह से जब आप इनको पढ़ते हैं तो इनकी पिक्युलरिटीज आपको मालूम है. तो इनका एटलीस्ट पॉलिटिकल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, उनके टाइम में इकोनॉमी कैसे चलती थी, इंटरस्टेट ट्रेड्स कैसे होते थे, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स कैसे होते थे. बीइंग अ कोस्टल स्टेट उड़ीसा, जैसे सर ने कहा, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हमारे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स भी होते ही होंगे. तो इन एस्पेक्ट्स के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो एस्पेक्ट्स को एक जगह लिखिए. कीप द सोशल एस्पेक्ट्स, एक हेडिंग दीजिए सोशल एस्पेक्ट्स. इनके टाइम में वो सोशल एस्पेक्ट्स कैसे थे, फिर भौमकारास में कैसे हो गए,
सोमवंशीज में कैसे हो गए, गंगस में कैसे हो गए, गजपतिज में कैसे हो गए। तो एटलीस्ट आपका सोशल एस्पेक्ट्स का एक लिस्ट तैयार हो गया। तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो when you sit in the examination, when you try to write it, the ideas will flow automatically. उस समय आपको सोचना नहीं होगा, and you will not waste that single minute which amounts to quite 15 to 20 minutes in an examination, जिसको आप use कर सकते हैं to write some question which needs some thought provocation, isn't it? So try to do reverse engineering. इस एग्जाम का सारा मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं है। आप सिलेबस देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद पढ़ना चालू कर देते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा, क्या क्या स्टेज है, व्हाट आर द कंट्रीब्यूटर्स, आपने उस टाइप से पढ़ लिया, सारा पढ़ लिया। लेकिन हाउ टू क्रॉस चेक वेदर माई पैटर्न ऑफ स्टडी इज इफेक्टिव और नॉट, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेते हैं, पीछे से आ रहा है ना, रीड एट द सेम पॉइंट। व्हेन यू डू बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली देन यू विल बी कॉन्फिडेंट। और अदरवाइज इसके बाद तो आप टेस्ट सीरीज भी तो देंगे ना, देन यू विल चेक योर सेल्फ हाउ फार योर स्ट्रैटेजी हैज बीन इफेक्टिव, फाइंड द लूप होल्स इन योर स्ट्रैटेजी। दिस इज वन पार्ट। ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं, मैं बता रहा हूँ। सी, अब इंडियन सोसाइटी, ये किस जीएस में है? दिस इज जीएस 1, राइट? अब ये देख लीजिए आप, ये क्या है? ये GS2। आप कभी भी GS1 का सोसाइटी और GS2 का सोशल जस्टिस अलग नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे सोशल जस्टिस, हु आर यू प्रोवाइडिंग जस्टिस? हु इज द स्ट्रेटा हु आर प्रोवाइडिंग जस्टिस? चलो किसे जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट अस कीप इट दिस वे, किसे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं? हु इज बेटर ऑफ? प्रोवाइड उसे कर रहे हैं हु इज वल्नरेबल। जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, हम उसे जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। कौन वल्नरेबल है, कौन नहीं वल्नरेबल है, दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट, और उसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में भी रखा गया है। दिस इज अ पॉलिटिसाइज्ड थिंग। आपको मालूम होना चाहिए हु आर वल्नरेबल। आर वुमेन नॉट वल्नरेबल? यस दे आर, इजंट इट? स्पेशली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड, फिजिकली डिसेबल्ड नहीं बोले उन्होंने, दे आर डिफरेंटली एबल्ड। दिस इज अ मोर पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट। चिल्ड्रन, द सीनियर सिटीजन्स, सभी हैं, एक सेक्शन नहीं है, वो आपको मालूम होनी चाहिए कौन नहीं है। इन सभी को आपने जस्टिस प्रोवाइड करना है। ये देखिए जितने पॉइंट्स है यहाँ, 1, 2, 3, 4 and 5। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, टू हुम? टू दोज वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। व्हाई डिड आई से दिस? वुमेन का एक अलग सा हेडिंग बना लिया वुमेन का, बिकॉज दे आर वल्नरेबल, राइट? ये सारे चीजों के वुमेन के लिए आप बना लें। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर वुमेन सभी को मालूम है, बट दे आर नॉट कंसोलिडेटेड। मैं इसीलिए कह रहा हूं, सर ने जैसा कहा, यू हैव टू पुट अप एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। प्रीलिम्स खत्म हो गया, व्हेन द प्रीलिम्स इज ओवर देन आई विल थिंक ऑफ मेंस। मेंस के 1-2 महीने निकल जाएंगे कि मैं कहां से पढ़ूं। आप पहले ही इसे कर लें, आपके पास वो नोट्स होंगे। अच्छा, आपने PhD इसीलिए नहीं करना है बिकॉज UPSC मैक्सिमम कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछती है? व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू अ क्वेश्चन इन मेंस? 15। इन OPSC 20। व्हाट इज द मैक्सिमम वर्ड लिमिट in UPSC for 15 marks? 250। and what about in OPSC for 20 marks? 300। 300 मतलब आप समझ ही रहे हैं कितने पेजेस में जाएंगे वो। पेजेस आर ऑल्सो एलोकेटेड। आपको तो उससे ज्यादा लिखना नहीं है, मोर ओवर आपको 15 क्वेश्चंस भी लिखने हैं। तो योर नोट्स शुड बी मेड इन सच अ वे, जैसे 300 वर्ड्स का पूछा है ना, आप 350 वर्ड्स के अंदर फिर बना लें। कुछ टॉलरेंस वैल्यू होता है, कुछ इधर कुछ उधर, तो उतना आप बना के रखोगे तो एग्जाम के टाइम में आपको कहीं इधर उधर भागना नहीं होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, दैट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, प्लीज डू इट योर वे। जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है। न्यूज़पेपर रीडिंग से क्या मिलता है आपको? नॉट ओनली द कंटेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, you will understand a way of articulation,
You will understand a way of perception, कैसे हम deal करते हैं एक topic से. If you read the Hindu and the Indian Express on the same very topic, you will find two different perspectives. आप एक बार करके देखिए. You find some contents, आपको कंटेंट सेम मिलेगा लेकिन पर्सपेक्टिव अलग मिलेगा, विच इज डिबेटेबल. करेक्ट, अंडरस्टूड. लेकिन उससे क्या मिल रहा है आपको? यू आर गेटिंग टू पर्सपेक्टिव्स. ये आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा. सो दिस इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच. आप इफ दिस सिलेबस ऑफ द सिविल सर्विसेज डिमांड्स करंट अफेयर्स, उस करंट अफेयर्स का मतलब क्या है? उस करंट अफेयर्स का मतलब यही है कि यू नीड टू डेवलप पर्सपेक्टिव्स. उन पर्सपेक्टिव्स को आपको पुट अप करना होगा एट वेरियस प्लेसेस व्हाइल यू आर इन सर्विस. दिस इज वन थिंग. दूसरी बात, ये जितने चीज मैंने बताया आपको कि यू मेक अ हेडिंग, यू मेक सेपरेट नोट्स, उन नोट्स में आप उन करंट अफेयर्स को इनकॉर्पोरेट कर लेना खुद से. वंस यू डू इट योरसेल्फ, इट इज वेरी मच इम्पॉसिबल दैट यू फॉरगेट इट. लेकिन आप किसी कंटेंट को उठाएंगे, एग्जाम अभी 1 महीने में, मान लेते हैं सितंबर अक्टूबर में एग्जाम है, आप शुरू करते हैं लेट्स से जून जुलाई में कि हाँ चलो एक लाइन से मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ. इतना इजी नहीं है. एक ब्रेन का कैपेसिटी होता है, उस कैपेसिटी के अंदर ही वर्क करना है. यू हैव टू वर्क हार्ड इन अ वेरी स्मार्ट वे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू रीड योर न्यूज़पेपर्स डेली. इट विल नॉट डेवलप ओवरनाइट. आप अभी शुरू करें. ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि गो एंड स्टडी द एडिटोरियल. फॉर बॉयज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो लोग स्पोर्ट्स पेज को बहुत तवज्जो देते हैं, तो एटलीस्ट स्पोर्ट्स पेज तो पढ़ लीजिए आप. एटलीस्ट पता तो चल जाए कि एक सेंटेंस को फॉर्म कैसे करते हैं. आप एक सेंटेंस को फॉर्म कैसे करते हैं, बहुत ही इट इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग. व्हेन यू गो टू द मेंस, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग एक्चुअली, then you understand the value how to frame a particular sentence in a very effective way. You have to convey a lot of information in a very few words. When you write an essay on a cow, in how many words? Let's say 100 words. And I'll ask you to write in 1000 words. Writing in 1000 words will be very easy. क्योंकि आपके पास वो स्कोप है, वो प्लेथरा स्कोप मिल गया आपको. यू विल हैव द वाइडेंड स्कोप. लेकिन जब 100 वर्ड्स बोल रहा हूँ तो लेट्स से 8 to 10 सेंटेंसेस, यू विल हैव टू चूज व्हाट 8 to 10 सेंटेंसेस यू नीड टू राइट. तो इन छोटी छोटी चीजों को, दीज आर वेरी, you do not think this as silly and petty things. This will work in the long run. जब when people are not getting that opportunity to write the mains examination, take it that an opportunity. If somebody who has not cleared prelims this time and aspiring for the next one, you have an added advantage. वो ये है कि somebody who has cleared the prelims, उनके पास क्या रहा है? उनके पास 3 से 4 महीने रहे. He will try to do everything in 3 to 4 months. लेकिन आपका अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट साइकिल के लिए पूरा कंप्लीटली आपके पास वो टाइम मिल गया. सो आप उसको भी ध्यान में रखिए. टेक इट दैट एज एन अपॉर्चुनिटी. एंड ये सारे सिलेबस जितना दे रखा है, ये देख लीजिए आप. यूपीएससी में जितना सिलेबस मेंशन्ड है, कुछ नहीं तो उससे 20 से 30% ज़्यादा दिखेगा आपको. बट अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए? व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि GS3 मेरा स्ट्रांग है, GS1 मेरा वीक है, तो मैं छोड़ दिया GS1. There used to be a time when you had 2 optionals. We had 2 optionals here. What was the weightage of the optionals? It was close to 1200 marks, right? 300 into 4. 2 optionals, है ना? GS का क्या weightage था? 600. परसेंटेज निकाल के आप देख लें क्या है. At that point of time, it was a sort of specialist examination. Right now, on the very pattern of UPSC, it has been designed. Can you afford to be specialist at this point of time? No. Even this year also, when you go and see the questions, many questions are asked जो आपको लगेगा कि GS3 में है, लेकिन GS1 में भी पूछा गया है. Can you afford to skip anything? So you have to skim through everything. You have to have a peripheral understanding of each and everything. You can't skip anything. अगर एक point यहाँ mentioned है, then you must have prepared the notes. At least उतना तो मुझे मालूम होना ही चाहिए.
एग्जाम में कुछ तो लिखोगे, कुछ आइडिया तो होना चाहिए। और जब इंटरलिंक करते हैं, इंटरलिंक, आप ये नहीं सोचा कि इंटरलिंक कर लूंगा मैं आज ही, आज शुरू किया 2-4 दिन में इंटरलिंक कर लिया, ये उम्मीद भी मत रखिए खुद से। आपको इंटरलिंक करने के लिए एटलीस्ट GS 1, 2 और 3 का पेरिफेरल व्यू होना ही चाहिए। अगर आप नहीं उतना किए हैं तो आप इंटरलिंक किसके साथ करेंगे? सिर्फ GS 1 पढ़ा है, इफ यू हैव स्टडीड ओनली GS 1, you might have a little knowledge about the economy, right? Little knowledge. अब जब सर ने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा दिया, एटलीस्ट यू मस्ट हैव अ बेसिक आइडिया कि अगर मेरे पास कुछ सर्टन पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं जिसको मैं लिख सकता हूँ एक, तो GS 1 के कुछ क्वेश्चन में, जैसे मैंने वो बताया खारवेल डायनेस्टी एंड ऑल, उस टाइम में आप ये तो कर सकते हैं कि क्या पॉलिसीज होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिक्स, उस एंगल से आप सोचेंगे तो 1-2 पॉइंट आपके निकल जाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज डोंट गो टू अहेड ऑफ योरसेल्फ, पहले सारे सिलेबस को अच्छे से आप पढ़ लें और PhD करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। मोस्ट ऑफ अस हैव ओनली फेल्ड कि हम PhD करने के लिए गए हैं, और जहाँ एक्चुअली हमें अच्छे से पढ़ना है ऑप्शनल, उसके लिए हम उतना टाइम ही नहीं डेडिकेट करते हैं। अभी आपका GS का क्लास चालू हो जाएगा, है ना? हाउ मच टाइम डू यू हैव फॉर ऑप्शनल्स एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टडी ऑप्शनल्स? व्हेन इज योर प्रीलिम्स? प्रीलिम्स आपके सितंबर या अक्टूबर में होंगे, तो एटलीस्ट 2 to 3 months यू हैव टू डेडिकेट फॉर प्रीलिम्स, राइट? solely for prelims. Before that, it is the right time for you to finish optionals as well as ethics, और वो सारे topics जो prelims में नहीं पूछे जाते हैं, only for mains. Like any example? Some topics which are only in mains, not in prelims. Anybody? GS 1 से शुरू कर ले। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया प्रीलिम्स का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये मत सोचिए प्रीलिम्स का पार्ट बिल्कुल ही नहीं है। वेयर द सिलेबस इज वेरी कर्टेल्ड, बहुत छोटे होते सिलेबस, उनका स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ सिलेबस बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, लूसिडली मेंशन्ड है, वहाँ पे यू हैव अ लेवरेज कि हाँ ये तो मेंशन्ड है, इतना ही पढ़ना है, वहाँ हमने कम पढ़ना है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हो गया, यू हैव टू कवर दैट, करेक्ट? So this is the correct time. This is the month of April. We are starting with the month of April, May and June. In these 3 months at least, you have to cover optionals. You have to cover ethics. At least एक बार तो ethics आप पढ़ लो। Ethics तो overnight. अब I have a certain behavior. Can I change it overnight? I can't do it. At least I have to have a certain idea about it. तो उसके बाद क्या होगा? When you clear the prelims, prelims के बाद आप अगर दूसरी बार उसे पढ़ लेते हैं, you can brush up your skills. और ethics के क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत कम आते हैं. If you see this year's questions also, even the case study was a very tricky one this year also. How many people have of us have gone through the questions of this year? Because the syllabus has changed. आपके पास वो blueprint क्या है? सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेंज सिलेबस का, तो एक ही बार आया है ना, एक ही बार आया ना। दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव कंडक्टेड इट। एटलीस्ट उसे तो पकड़ के चले, एटलीस्ट। सो यू हैव टू पिक अप दैट सिलेबस। जो पूछ रखा है एक बार तो खुद से ट्राई कर लो। वंस यू फिनिश द पेरिफेरल व्यू ऑफ दिस सिलेबस, मैं बार बार कहता हूं कि मेंस के लिए आपने पढ़ना है तो यू हैव टू हैव अ ब्रेड्थ इन अंडरस्टैंडिंग। ब्रेड्थ अच्छी होनी चाहिए, सो दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट सम अदर एस्पेक्ट्स जहां पे आप फंस रहे हैं। कुछ जहां प्रीलिम्स आप पढ़ते हैं, कुछ डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, तो जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं यू कांट इवन एलिमिनेट। वंस यू एलिमिनेट, then you are there with a 50-50 chance in the certain question. And always try to pick up the low hanging fruits. जो टॉपिक्स इजी हैं आप उसे तो पढ़ ले पहले, डिफिकल्ट टॉपिक से पीछे बढ़े हैं। एक टॉपिक सिटीजनशिप पे पढ़ाया जा रहा है, वहां पे पॉलिटिसाइज्ड ओपिनियंस लेकर आ रहे हैं। आप देखें कभी सिटीजनशिप से क्वेश्चन आती है? इन माई अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? बिकॉज इट इज अ वेरी पॉलिटिसाइज्ड टॉपिक, it can be debatable. तो they are deliberately avoiding such kind of questions. तो आपको उतना आइडिया होना चाहिए। A very smart aspirant ऐसा नहीं करेगा कि उसे सिटीजनशिप बिल्कुल नहीं मालूम, उसे मालूम होगा, लेकिन कितना मालूम होगा?
जितना मालूम होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बियॉन्ड वो जाएगा नहीं, बिकॉज उस टाइम को उसने प्रॉपर यूज करना है दूसरे जगह पर। लुक एट द sheer साइज ऑफ द सिलेबस, कितने बड़े सिलेबस है ये। लुक एट दिस पार्ट ओनली, इकोनॉमी। यहाँ 3 पार्ट दिया ना इकोनॉमी में, दिस 1, 2 and 3. You will take almost 50 to 60 hours of classroom study to complete it. तो आप समझ रहे हैं कैसे you have to complete it. Moreover, one part for Odisha, I am just recommending you, advising you, kindly do it yourself. आप DIY करेंगे, you will reap benefits जो किसी को नहीं मिलते हैं. Industrialization in Odisha. 99, what happened in Odisha? What happened in 99 and 99? A devastating cyclone hit us, super cyclone. There was a different government regime, and the government regime changed all of a sudden, and that has still been continuing, correct? Isn't it? उससे पहले इकोनॉमी का क्या स्टेटस था हमारा? You must understand, केबी के स्टेट्स है ना हमारे, केबी के स्टेट्स, what are they known for? Why are they known for? Educated people all over the India, they understand why KBK districts are named for. What are KBK districts? Name them. Jani Chandra. Why are they named for? For their poverty only. इंदिरा गांधी को आना पड़ गया यहाँ पे only to see किस तरह की poverty है. Thank you. How do you tackle this poverty? And from then on, this current regime, they worked on it. They worked on certain aspects. You have to work on potentialities. Potential पे काम करना होगा हमें. And more or less 10% growth is being registered, जो national average से भी ज़्यादा है. क्यों हुआ वो? Kindly ask this question to yourself. सर ने बोला like-minded people का एक ग्रुप बना है. Peer group is very important. कैसे मालूम चलेगा आपको? अरे मैं आपको कुछ बोल दूं, आप मुझे कुछ बोल दो, इससे आइडिया हो गया, देन मेंटेन योर नोट्स. लेकिन हम करते नहीं है वो चीज़, हम दूसरा कुछ करने लगते हैं. हम तो वो नहीं, हमें वो नहीं करना है. इन दीज टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स, डू यू हैव अ प्रॉपर बुक फॉर इट? कोई रेफरेंस बुक है? पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, इसमें क्या है? व्हाट डू यू हैव इट? जो क्वेश्चन सेट करेंगे एग्जामिनर, वो तो ये नहीं देखेंगे कि आपके पास रेफरेंस बुक नहीं है, जहां से आप डायरेक्टली उठाए और वहां पेस्ट कर लें. नहीं है, तो आपको इसे बनाना होगा. कैसे बनाएंगे? थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ेगा. कुछ पॉडकास्ट्स आते हैं, कुछ पॉडकास्ट देखिए. सबसे बड़ा सोर्स है द गवर्नमेंट्स वेबसाइट इटसेल्फ. गवर्नमेंट के वेबसाइट्स में जो डेटा है वो आपको हो सकता है गलत लगे, लेकिन वही डेटा आपको लिखनी है. ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने देखा है, गो टू द वेबसाइट, गो टू द गवर्नमेंट्स वेबसाइट फर्स्ट. एक बार नहीं मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा, तीसरे चौथे बार मिल जाएगा. फिर फरवरी कब आता है हमारा बजट? फर्स्ट ऑफ उससे पहले दिन क्या आता है? द इकोनॉमिक सर्वे. बहुत हल्ला होता है सारे एस्पिरेंट्स का, इकोनॉमिक सर्वे आया, उसका एनालिसिस आ गया, ये आ गया वो. ओडिशा का भी इकोनॉमिक सर्वे है खुद का. ओडिशा ऑल्सो हैज इट्स इकोनॉमिक सर्वे बिकॉज दे ऑल्सो पास देयर ओन बजट, तो उनका इकोनॉमिक सर्वे भी होगा. काइंडली केयर टू सी द इकोनॉमिक सर्वे बिकॉज इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द पीपल ऑफ गवर्नमेंट. द डेटा व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग you will find directly present. Each and every data, I am telling you, I have seen it myself. At least from these topics, infrastructure, energy, ports, roads and all. Each and every topic from these places, you will find it in the, from the Odisha Economic Survey. It might not have been updated for this time. For the previous year, it is available. अगर गवर्नमेंट वालों ने उसे अपलोड नहीं किया है, जब तक अपलोड नहीं किया है, that is the latest data for you. You must keep it in mind. ये सारे चीज, जैसे लैंड रिफॉर्म्स आपने इंडिया में पढ़ना. लैंड रिफॉर्म्स क्यों पढ़ा? लैंड में रिफॉर्म्स की जरूरत क्या थी? what was the urgent need of land reforms in India? You have to understand what was our past. There was a serious concern with land. So at that point of time,
when we achieved our independence, this was the most pressing issue, land reforms. तो लैंड रिफॉर्म्स अगर इंडिया में कहीं से शुरू हुआ है, इट माइट हैव बीन फ्रॉम सर्टेन स्टेट्स, पैरेलली उड़ीसा में भी हुआ है. आप उस एस्पेक्ट से पढ़े, 9th शेड्यूल को पढ़े. जब 9th शेड्यूल को पढ़ रहे हैं, लुक एट द प्रोविजंस ऑफ ओडिशा आल्सो. लोकपाल कब आया था? 2000 आई गेस 13. लोकपाल 2013, राइट? तो लोकपाल तो सेंटर में है ना. उड़ीसा में क्या आएगा? एक पैरेलल लॉ तो आएगा, लोकायुक्त एक्ट. उड़ीसा में क्यों आया पैरेलल? उसी तरह से पैरेलली हर एक स्टेट्स में, कुछ ना कुछ स्टेट्स में तो आया ही होगा. कुछ स्टेट्स जो उन्हें इंप्लीमेंट करना चाहें. स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहाँ पे? व्हेन यू कम टू दिस प्लेस हियर, यू माइट हैव सीन समवेयर, है ना. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो है, स्टेट वाले की जरूरत है. तो आस्क दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन टू योरसेल्फ. जब ऐसे क्वेश्चन आप पूछेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि जैसे कि स्टेट और सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, करेक्ट, दैट माइट हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम सर्टेन एक्ट्स. कुछ एक्ट से बने हुए. सेंट्रल वाले शायद वाटर पोल्यूशन एक्ट से बने, स्टेट वाले फिर अलग से क्यों बनाने पड़े. यहाँ से आपको ये भी मालूम चल जाएगा. जब आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, ये इस टॉपिक को आप एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से आपको ये मालूम चल जाएगा कि 7 शेड्यूल क्या है. एटलीस्ट आपको एक इंटर रिलेशन मालूम चल जाएगा. 7 शेड्यूल में सेंटर यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, isn't it? On the basis of such, it has been designed. So this is the interlinking you need to understand, and it will evolve over time. ये आज नहीं होगा, कल नहीं होगा. It will evolve over time. So these are a few aspects. Otherwise, I am available. You can ask me after the class. After the class, you can ask me. I'll let you understand. But keep a few things in mind. आपको PhD नहीं करना है, बिल्कुल. बहुत सारे टॉपिक्स है, कहाँ PhD करेंगे आप. 1-2 में करोगे तो बाकी छूट जाएंगे, 2 में करोगे 4 छूट जाएंगे. उस चक्कर में 2-3 क्वेश्चन मेंस के गए, एंड यू आर आउट ऑफ द रेस. यू आर डन. प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर. और तब तक अगर कॉन्साइंस नहीं खुला है तो 1-2 अटेम्प्ट भी चले जाएंगे ऐसे ही. सो डोंट डू दिस मिस्टेक. पढ़ना उतना ही है जितना 300 वर्ड के अंदर आएगा. 300 वर्ड्स 300 वर्ड्स के अंदर लिखने के लिए 400 वर्ड मैक्सिमम आप अपना नोट्स बना लेते हैं. बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं, खुद को थोड़ा सा वर्क करना होगा. यू हैव टू वर्क योरसेल्फ. ओके, आई एम डन. सर टेक ओवर प्लीज. ठीक है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया लग गया आप लोगों को, है ना, कि किस तरीके से तैयारी करनी है. व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन हैज टू बी डन. सर गिव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया अबाउट the various aspects of the preparation, and he is going to be a mentor while you guys will be here. And आपको जो भी सवाल पूछना है सर से आप पूछिए और interact कीजिए as if he is part of your circle and your preparation. You need to have a good mentor, and I'm pretty certain sir is going to do excellent work over there. ये बहुत important होता है इस पूरे preparation के journey में. We need to have mentors. अक्सर आप देखेंगे कि किसी के भाई, बड़े भाई जिन्होंने सर्विस में ऑलरेडी हैं, they get you know a better guidance. तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग सर से इंटरेक्ट कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं ऑन अ डेली बेसिस सर से पूछिए, एंड ही इज़ गोइंग टू डायरेक्ट यू टुवर्ड्स योर गोल. मोर सो उड़ीसा स्पेसिफिक में गोइंग टू गेट अ वेरी हेल्पिंग हैंड ओवर देयर. दैट इज हाउ इट शुड बी, है ना. एंड गिव योरसेल्फ एंड हैव सम कॉन्फिडेंस इन योर ओन मेरिट. जो सर ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स को रेज किया, जो आई थिंक इज नॉट मेनी टीचर्स आर एबल टू फिगर आउट. कहाँ पर कितना आपको वेटेज देना है, कैसे इंटरलिंक करना है, किस तरीके से सिलेबस को अप्रोच करना है ना. तो वो ये एक मैच्योर माइंड की निशानी है कि जिसने भी एक सर्टेन टाइम तक तैयारी की है उसको वही इस बात को समझ सकता है कि कहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो गलतियाँ करेगा या कहाँ पे मिस्टेक्स हो.
I'm pretty certain that you guys are going to have a good time while you enjoy your preparation, है ना? So ये आज का क्लास हम लोग ये ओरिएंटेशन सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं. अगर आप लोग को कोई डाउट है तो प्लीज़ यू कैन रेज योर डाउट्स. किसी को पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज विल रैप इट अप. किसी को कोई डाउट? ठीक है, लेट्स कॉल इट अ डे. इंटरनेशनल रिलेशन का हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो भी है ओरिएंटेशन. थैंक यू. अपना नंबर आप दे दीजिए मुझे.